We welcome you to this session. This session is a part of the series Udyamita Ki Aur, an initiative by National Center for Innovation in Distance Education, IGNOU. The objective of the series is fostering a spirit of innovation and entrepreneurship among students and faculty in the university. The fortnightly series of teleconferencing sessions, Udyamita Ki Aur, is a unique program where experts from different sectors discuss entrepreneurial opportunities in specific subject areas or sectors. The viewers are provided information about the existing innovations and startups in a particular area, possible entrepreneurial opportunities and funding opportunities available in that area. The session is held on 2nd and 4th Wednesday every month from 3 p.m. to 4 p.m. So far, we have had sessions on innovation and entrepreneurship opportunities in allied biological sciences, poultry sector, waste management, and food processing. In today's session, which is the 6th episode of the series, we will discuss the opportunities for startups in disability sector. According to the Ministry of Statistics and Program Implementation of India, 2.21% of the Indian population suffers from some form of disability. In absolute numbers, this amounts to 2.68 crore people. The global figures are more staggering. According to the International Labour Organization, there are over 1 billion persons with disabilities in the world. There is a need to provide disabled people with world-class technology so that they can be productive, efficient, economically and socially empowered. The focus being on creating a more inclusive world. Provisions to help them lead a more comfortable life are imperative to boost inclusivity. It is said that technology is a great enabler. Technological innovation is trying to eliminate barriers for people with disabilities. We will be discussing more about this in this session. We have with us in today's session two eminent experts. Dr. Hemlata, Additional Director, NCDS, IGNOU. Dr. Hemlata has a rich experience in the area of disability, and she has been actively involved in many initiatives in the area. Her special areas of interest being intellectual disability and disability studies. We also have with us Dr. O.P. Sharma, Director NCID, IGNOU. We are pleased to have you with us in this session. Indian society's efforts to include the disabled community can be seen in the entrepreneurial sector. Initiatives are being taken up for building a startup ecosystem in an area where historically only governments and NGOs used to function. Battling the Indian underdeveloped infrastructure makes it difficult for the disabled community to get around. There is a need for innovation in the provision of 4 assistive products: hearing aids, prostheses, eyeglasses, and wheelchairs. To start the discussion, I would request Dr. Hemlata to please tell us more about the possibilities of innovation in the disability sector. Dr. Hemlata, please. Thank you, Sujata. Actually, when we talk about possibilities of starting a startup in disability sector, anything that touches a human life is related to persons with disabilities too. We cannot say that they are not a part of that society. So if we talk like from the birth of a child, like if you need some assistive devices or some aids that is needed for a person, for a child with disabilities, that should also be available.
And even when a child go to a play school, the play school should have devices or the toys that are accessible or that the child can play. For example, if there is a blind child in a play school, so the toys that should be rattled, आवाज करने वाले टॉयज उनके लिए होना जरूरी है. तो और इसमें एक स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है. स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो हमें, और इनोवेशन की बात करें तो वहाँ डिसेबिलिटी सेक्टर में इनोवेशन और स्टार्टअप की बहुत पॉसिबिलिटीज हैं. और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमारा बच्चा अगर स्कूल में चला गया है, स्कूल में जाने के बाद उनके पास किताबों की ज़रूरत होती है. तो और एक डेफ बच्चा है अगर हमारी क्लास में, तो उसको हम कैसे समझाया जाए. तो बहुत तरह के इनोवेशन उसमें भी किए जा सकते हैं कि डेफ बच्चे को समझाने के लिए हम कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स डेवलप करें जिनके माध्यम से उनको हम सिखा सकते हैं. इसी तरह से अगर सेरेब्रल पाल्सी वाला बच्चा है तो उसको खाना खाने के लिए हो सकता है उसकी स्पून में कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े. तो इस तरह से अगर स्टार्टअप की जो पॉसिबिलिटीज अगर देखें तो इनॉर्मस है. मतलब ये तो मैं मतलब पैदा होने से बच्चे के एजुकेशन तक जाने की बात कर रही हूँ. इसके अलावा हम अगर मार्केट में जा रहे हैं तो वो स्टोर्स भी उनके लिए एक्सेसिबल होने चाहिए, उनके लिए कपड़े एक्सेसिबल अवेलेबल होने चाहिए, टॉयज अवेलेबल होने चाहिए. तो एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के हिसाब से देखा जाए तो जो भी चीज ह्यूमन लाइफ में जरूरी है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए और उसमें स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है. ये डिपेंड करता है कि जो उसको शुरू करने जा रहे हैं, जो लोग उसमें काम करना चाह रहे हैं, वो किस लेवल पे काम करना चाह रहे हैं. और बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी सुजाता जी आपसे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एटीट्यूड, जो काम करने वाले लोग हैं उनका, इनके लिए एटीट्यूड जो है वो एक पॉजिटिव होना जरूरी है. हम ये समझ के काम करें कि हाँ ये लोग काम कर सकते हैं, इनको एज ए टीम हम इन्वॉल्व करें, एज ए टीम मेंबर, या ये खुद एज अ इनोवेटर अगर हम ये काम कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप को शुरू कर रहे हैं, तो दे कैन हायर पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज एंड दे कैन वर्क एज अ टीम. लेकिन वहां हमें बहुत सारे एडेप्टेशंस करने पड़ेंगे, बहुत सारे चीज़ों में हमें चेंज करने पड़ेंगे, जिसके लिए हम आगे बात करेंगे. और एक बहुत दूसरी चीज़ है एटीट्यूड के साथ साथ एक ज़ील, वो काम करने की वो जो एक ज़ील इंसान के अंदर है वो बहुत ज़रूरी है. तभी डिसेबिलिटी सेक्टर में हम काम कर सकते हैं, उसको सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. आप किसी भी सेक्टर में अगर काम करते हैं तो ये जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. मैम, तो मेन एरियाज जहाँ पर स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज हैं वो कौन से हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के लिए उपलब्धियां हैं? देखिए, अगर हम एरियाज की बात करें तो एरियाज में मैंने जैसे कहा, हेल्थ केयर में हम काम कर सकते हैं, एजुकेशन में काम कर सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री में बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो व्हील चेयर यूजर्स हैं उनके लिए जो क्लोथिंग आ रही है, जो मेन स्ट्रीम में आप जाएंगे बहुत सारे ब्रांड्स आपको अवेलेबल हैं. और आजकल आपने देखा होगा कि प्लस साइज के लोगों के लिए भी क्लोथ्स अवेलेबल हैं. लेकिन अगर कोई व्हील चेयर यूजर है तो उसके लिए क्लोथ्स जो है वो हमें किस तरह के चाहिए होंगे, उनके लिए शूज किस तरह के हमें जरूरत पड़ेगी. तो वो एक बहुत ही मतलब अपकमिंग वाली चीज है कि आप फैशन वाली जो बात कर रहे हैं वो होना जो है, क्योंकि हम भी एक समाज का हिस्सा है तो उसमें हमारा होना भी जरूरी है. इसके अलावा अगर हम फिल्म्स देखने जाते हैं तो हमारी फिल्म्स जो हैं, क्योंकि फिल्म स्क्रीन पे बाकी लोग फिल्मों को देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे ब्लाइंड लोग हैं वो सारे नुआंसेस को आप सुन नहीं सकते हैं. तो बहुत जगह हो सकता है हमें उन फिल्म्स में जो जहाँ सीनरी दिखाई जाती है तो उसका हमें वर्बल डिस्क्रिप्शन देना पड़े, तो वो वर्बल डिस्क्रिप्शन के साथ फिल्म्स अवेलेबल हों. और अगर डेफ लोग देख रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उनका नीचे जो कैप्शनिंग है वो हो, इसके साथ साथ थोड़ी स्लो कैप्शनिंग भी हो, क्योंकि हो सकता है कई बार कि हमारे जो सुनने वाले लोग हैं जो प्रोग्राम्स को देख रहे हैं उनमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, इतनी जल्दी वो उस बात को पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो जो स्क्रॉलिंग होता है नीचे मैसेज वो थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है.
तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे एरियाज हैं इसके अलावा जो बात करें। आप कहें तो मैं उनको इलेबोरेट कर सकती हूँ, जस्ट हाँ आई कैन प्लीज, नेम देम। कुछ सेक्टर्स जिसमें कि स्टार्टअप ले सकते हैं फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वो थोड़ा सा आप इलेबोरेट कीजिए प्लीज। जैसे कि ऑनलाइन स्टोर फॉर ग्रोसरीज, वहाँ हम अपने डेफ लोगों को भी काम के हिसाब से हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, और ब्लाइंड लोग भी हो सकते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले लोग भी हो सकते हैं, सीपी वाले लोग भी हो सकते हैं। और ऐसे अभी आजकल कई जगह पे हो रहा है, जैसे बिग बाजार है या बहुत सारे स्टोर्स हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को स्पेसिफिक जॉब्स में लगा रहे हैं। देन ऑनलाइन स्टोर फॉर एड्स एंड अप्लायंसेस, उनके लिए जो अवेलेबल है ऑनलाइन, तो वो काम किसी भी लेवल पे अपने यहाँ से बैठ के कर सकते हैं। देन एप्स की बहुत ज़रूरत है। हम मोबाइल ऐप्स की बात करते हैं, तो अगर ब्लाइंड लोगों को पढ़ने के लिए मटेरियल चाहिए तो वो अगर ऐप्स में एक्सेसिबल फॉर्मेट में है, वो इनके लिए ईजी हो सकता है। दूसरी बात है, एक डेफ ब्लाइंड लोग होते हैं, तो उनको डेफनेस भी है और ब्लाइंडनेस भी है, तो उन लोगों के लिए भी एक स्पेसिफिक ऐप इस तरह का अवेलेबल है कि अगर दो लोग वो मोबाइल का थोड़ा उनको चीज़ें सीख लेते हैं, तो उसके माध्यम से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अडेप्टेड टॉयज का स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है, जिसमें टॉयज में आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह की डिसेबिलिटी वाले लोगों को आप इसमें कर सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तो इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज हैं। आजकल आप देखिए बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत तरह की सुविधाएं हैं, बाईजूस के क्लासेस हो रही हैं, और चाणक्य की हो रही हैं, और बहुत सारी हो रही हैं। लेकिन वहीं हम ये देखें कि अगर हमारे बच्चे डिसेबल्ड हैं, तो उनको क्लासिंग उनके लिए हम किस तरह की चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं। क्लोथिंग का जैसे मैंने चर्चा की, स्पेशलाइज्ड क्लोथ फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ई बुक्स की बात हो सकती है। एक्सेसिबल ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवल तो बहुत लोग करना पसंद करते हैं, तो क्या पर्सन विद डिसेबिलिटीज अगर जा रहे हैं तो क्या उनके लिए तो इस तरह की हम सुविधा दे सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत काम कर सकते हैं। ईटिंग जॉइंट्स में आप लोगों ने अभी सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक मिट्टी कैफे शुरू किया है, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के द्वारा शुरू किया गया है। इसी तरह से इकोस एक कैफे है, जिसमें डेफ लोगों के द्वारा उसको शुरू किया गया, डेफ लोग उसमें एम्प्लॉयज हैं। इसी तरह से अभी वेस्ट दिल्ली में भी एक शुरू किया है, स्टार्टअप है, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के द्वारा ही उसको चलाया जा रहा है। तो और अभी हौज खास में एक ब्लाइंड बेक है, जो ब्लाइंड वुमेन के द्वारा है, और दे आर हैविंग दिस कैफे। द नेम इज ब्लाइंड बेक एंड कैफे। आप जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये चीजें ब्लाइंड लोगों ने बनाई है। तो और उनका खाना आसपास के एरिया में जाता भी है, एंड वहाँ आके भी लोग उसको खाते हैं। देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में हम उनको लगा सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक्स जो है, ये एक नया सेक्टर है जो पिछले कुछ सालों से ही प्रचलन में आया है। तो इसमें है कि इंडोर प्लांट्स लगाए जाते हैं, और खास तौर से सैलड से रिलेटेड चीज़ें हैं, या जैसे जो एग्जॉटिक सैलड वाली चीज़ें हैं, वो इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। जो डेफ बच्चे हैं या दूसरी डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, उनको पूरा ट्रेनिंग्स दिया जाता है। पूरे 2-2, 3-3 महीने के भी प्रोग्राम्स होते हैं, एंड आफ्टर ट्रेनिंग दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द थिंग्स। और वो जो उनका प्रोड्यूस होता है, वो होटल इंडस्ट्रीज में सप्लाई होता है। तो हमने पीछे भी एक टेलीकॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें हमने वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर डेफ लोगों की बात की थी। तो उसमें हमने इस पे बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि कैसे डेफ लोगों को हाइड्रोपोनिक्स सिखाया जा रहा है, और उससे कैसे उनकी वोकेशनल स्किल्स को बढ़ाया जा रहा है, एंड दे आर बिकमिंग इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। देन होटल इंडस्ट्री में मसाज थेरेपी ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत एक अच्छा वो है कि हमारे ब्लाइंड लोग काफ़ी ज़्यादा होटल्स में, ये लोग जैसे जो बड़े 5 स्टार होटल्स वगैरह हैं, तो वहाँ ब्लाइंड लोग बहुत अच्छे से ये चीज़ कर पाते हैं। इसके अलावा गुड़गांव में बहुत सारे ऐसे बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने ब्लाइंड लोगों को अपॉइंट किया हुआ था अपने यहाँ। जब मल्टीनेशनल कंपनी में काम के दौरान जब बहुत स्ट्रेस होता है, लोग थक जाते हैं, तो उन्होंने 2 ब्लाइंड लोगों को अपने यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ था, और उनका काम था कि जो भी थकान के बाद उनके पास आ रहा है, उनको मसाज देना। एंड वो काफ़ी अच्छी तरीके से वो चीज़ चली। एंड केयर गिविंग के लिए आप उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। और डेफ लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि जो नॉइस प्रोड्यूसिंग जगह होती हैं, जहाँ बहुत शोर होता है, ऐसी मशीनें होती हैं जहाँ बहुत खट 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 की आवाज़ आती है, तो बाकी लोग अगर वहाँ काम करते हैं तो उनको सर में दर्द होगा और परेशानी होगी, लेकिन डेफ लोगों के साथ वो इशू नहीं होगा।
तो वो इस तरह से आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले लोग हैं या और डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो इसको कर सकते हैं. ज्वेलरी मेकिंग है, निटिंग, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, ये तो हमारे कन्वेंशनल चीज़ें हैं. पॉटरी एंड IT सेक्टर. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं, ये मतलब एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि जो भी चीज़ ह्यूमन लाइफ को टच करती है उस सब में पॉसिबिलिटीज हैं कि उनमें स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज उसमें खुद काम कर सकते हैं या उस टीम का एक हिस्सा भी हो सकते हैं. लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि इनको इसमें अगर हमें इन्वॉल्व करना है इस काम के लिए, तो वो ज़रूरी है कि हम उनकी पहले कैपेबिलिटीज़ देखेंगे कि उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, कौन सी ट्रेनिंग नीड्स हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन वर्क ऑन दैट. जो हमारी समझ में इस चर्चा में बात आ रही है वो ये है कि काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो डिसेबल्ड पीपल फेस करते हैं, और वही से हमें एक प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करना है जिसमें हम अपना स्टार्टअप का आइडिया उसको फाउंडेशन दे सकते हैं, जहाँ पे हम उसको नर्चर कर सकते हैं कि इस एरिया में हमें एक सॉल्यूशन डेवलप करना है. इसके बारे में डॉक्टर शर्मा आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताइए प्लीज़. डॉक्टर सुजाता, डॉक्टर हेमलता ने जो बताया कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें डिसेबल्ड पीपल को आसानी से इन्वॉल्व किया जा सकता है, उनको एंगेज किया जा सकता है एज पर देयर स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज, वो हैं. लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उनको इन्वॉल्व करने के साथ साथ उनके लिए या उनकी जो चैलेंजेस हैं या उनकी जो नीड्स हैं उनके हिसाब से हम क्या क्या इनोवेशंस कर सकते हैं और उन इनोवेशंस को करने के बाद में उनमें क्या क्या स्टार्टअप्स हम सेटअप कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई डिसेबिलिटी के स्टूडेंट जो लोग होते हैं उनके साथ में कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, और जो कम्युनिकेशन चैलेंज है उसको एड्रेस करते हुए कैन वी थिंक ऑफ सम इनोवेटिव डिवाइस, इनोवेटिव प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोसेस जो कि उनकी कम्युनिकेशन को इजी कर दे और आराम से वो एक दूसरे के साथ में, इवन डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, दे कैन टॉक टू दी नॉर्मल पर्सन्स. इस एरिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, काम करने की जरूरत भी है, चाहे हम डेफ एंड डम की बात करें या हम विजुअली इम्पेयर्ड की बात करें. क्योंकि विजुअल इम्पेयर्ड के साथ में क्या, वो देख नहीं सकते, उनको कम्युनिकेट करना है, हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हाउ वी कैन कम्युनिकेट टू देम इफेक्टिवली इन ए प्रॉपर वे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, जैसे स्पीच टू टेक्स्ट की बात हम करते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच की बात करते हैं, इस तरीके के एप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, और भी कई सारे डिवाइसेज हैं. तो एक तो ये बहुत स्ट्रांग एरिया है to strengthen the communication gap between the disabled and the normal people. वहाँ बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और उनकी नीड के हिसाब से we can think of finding the problem areas and accordingly we can think of the innovative solution, और वो in a long run that can be converted into a proper startup also. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है उनके नेविगेशन का या मूवमेंट का, क्योंकि अगर हम फिजिकली एबल्ड की बात, डिसेबल्ड की बात करें, या हम विजुअली चैलेंज्ड पर्सन की बात करें, या इस तरीके की जिनको नॉर्मल मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत सारे इनोवेशंस हो रखे हैं. जैसे व्हील चेयर की बात है, व्हील चेयर फॉर ए नॉर्मल पर्सन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ व्हील चेयर, एंड व्हील चेयर में भी if you study the development or growth of the wheelchair, then you will find कि पहले वो हाथ से ऐसे खींचने वाली व्हील चेयर थी, उसके बाद सम ऑटोमेशन, ऑटो ड्रिवन आ गई. नाउ देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ व्हील चेयर जो आपके जो ऐसे सोच रहे हैं उसके हिसाब से व्हील चेयर्स आर मूविंग, एंड आवर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो डूइंग वर्क इन दैट डायरेक्शन. तो वो ट्रांसपोर्टेशन की जो बात आती है, दैट इज जो मूवमेंट की बात है, नेविगेशन की बात, इन दैट डायरेक्शन देर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन. एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डॉक्टर हेमलता ने जो बताया, इंक्लूसिवनेस, क्योंकि हम उनको ये जो पर्सन्स हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट स्पेशल एबिलिटीज, टेकिंग इनटू अकाउंट देयर स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल स्ट्रेंथ. हमें कुछ इस तरीके का एनवायरमेंट बनाना है, चाहे वर्क प्लेस पे हो या होम पे हो, एंड दैट कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ इनोवेशंस. बिकॉज आप इस तरीके का एक अरेंजमेंट बनाएं, इस तरीके के इनोवेटिव डिवाइसेस बनाएं, अरेंजमेंट इकोसिस्टम बनाएं, सो दैट दे फील इन्वॉल्व विद अस. फॉर एग्जांपल इन वर्क प्लेस, इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस और एक पर्सन है विजुअली इम्पेयर्ड है एंड यू आर सिटिंग देयर, दे शुड नॉट फील कि कहीं भी कम्युनिकेशन गैप है. वट एवर यू आर
thinking, talking, they are also part of that. So that kind of environment is required, and for that purpose we need to think of the innovative ideas and solutions. Another important aspect of innovation जो area की बात करेंगे, that is accessibility. Accessibility in terms of movement, in terms of they're taking benefit of the things available with them. चाहे वो accessibility की हम reading, teaching, learning material की बात करें, या हम और भी जो भी resources हैं हमारे पास में, how we are making them accessible to those people. उस कॉन्टेक्स्ट में चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो आप कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट की बात हो, या किसी तरीके का और कोई डिवाइस बना रहे हैं, दैट गिव्स यू पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग न्यू आइडियाज एंड डेवलपिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस. एंड और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि व्हेन यू डेवलप एनी डिवाइस, you innovate any device, any product, that sometimes need to be customized as per the individual's need. Individual's need, जैसे आज के सेशन में ही we will talk about a customized innovation by our student, because he thought of something जो उनके हिसाब से जरूरत है, तो उसकी बात करने की जरूरत है. चाहे any kind of innovation you are doing for the disabled person, that may not be suitable to everybody, every disabled person. उनको कस्टमाइज करना भी बहुत जरूरी है. दैट इज अ एरिया ऑफ इनोवेशन फॉर दैट पर्पस. एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग वेरी ग्रेट रोल इन दिस फील्ड. चाहे वो टेक्नोलॉजी असिस्टेड डिवाइसेस की बात हो, चाहे आपका किसी तरीके के वॉइस कंट्रोल डिवाइसेस की बात हो, या आपका जो सॉफ्टवेयर्स की बात हो, या कोई मोबाइल एप्स की बात हो, दीज ऑल एरियाज टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग ग्रेट रोल. और वहां भी every day newer technologies are coming, so we should take advantage of those new and emerging technologies. Maybe the artificial intelligence और इस तरीके की जो भी है, internet of things is also working very well for the disabled person. क्योंकि जब हम voice control devices की बात करते हैं, a person sitting in a house is not able to move and want to control everything. Light switch on करना है, AC on करना है, these all things are required for the disabled persons. तो ये एरियाज ऑफ इनोवेशंस हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें यह है कि क्योंकि इनमें से कई डिसेबल्ड पर्संस ऐसे होते हैं जो कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट फीलिंग कनेक्टेड विद अस. तो कहीं जो इंफॉर्मेशन गैप है, वी शुड थिंक ऑफ डेवलपिंग डिवाइसेस, टेक्नोलॉजीज और दी प्रोडक्ट सर्विसेज जो उनके इंफॉर्मेशन गैप को पूरा करें. और इंफॉर्मेशन गैप को एज पर देयर डिसेबिलिटी, अगर विजुअली एम्पेयर्ड हैं तो उनके लिए उसी टाइप का इनोवेशन की जरूरत है, सो दैट द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन देयर फॉर्मेट, उनके वॉइस की फॉर्मेट में. अगर कोई डेफ एंड डम है, उनको अगर वही इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, दैट शुड बी इन विजुअल फॉर्म. सो दैट काइंड ऑफ इनोवेशंस आर रिक्वायर्ड. एंड शी हैज वेरी राइटली सेड के health and wellness, that is also very important area of innovation for the disabled persons, जहाँ की उनको या तो right kind of information नहीं है, उनको कहाँ किस तरीके की health problems हैं, उनको कैसे एड्रेस करना है. बहुत कई केस में तो disabled persons में they are not aware of the basic cause of that. तो अगर हम उनके लिए कुछ इस तरीके के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, और इस फील्ड में बहुत सारे स्टार्टअप्स की भी बहुत अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप ऐसे लोगों को एड्रेस करते हुए आर थिंकिंग सम इनोवेटिव आइडियाज और उसको एक स्टार्टअप के रूप में लेके जा रहे हैं, सो दैट इज हेल्पिंग ए लार्ज नंबर ऑफ डिसेबल्ड पर्संस. एंड अनदर इंपॉर्टेंट aspect is area of innovation is the education field, because education is the key for all kind of development and growth, whether it is a disabled person or normal person. इन सभी के केस में if you are empowering them from education point of view, उनको right kind of education दे रहे हैं, तो वो बहुत important है. एंड इनकी डिसेबिलिटी उनको कई बार वो रेस्ट्रिक्ट करती है टू गेट द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन. तो देयर इज ए नीड फॉर प्रोवाइडिंग right kind of applications, technology based innovations and startups, so that they are addressing their problem. इस तरीके के एजुकेशनल जो बैरियर्स हैं, how we can remove those, that is very important. And another important aspect she has very rightly highlighted कि इनको इन्वॉल्व करना, इनको एंगेज करना, that is also important. चाहे वो we are developing a startup जिनमें उनको एज ए एम्प्लॉय ले रहे हैं, we are taking them as a team member,
और वी आर प्रोवाइडिंग देम डिफरेंट काइंड ऑफ अदर सपोर्ट्स एंड सर्विसेज. तो उस तरीके से अगर उनको एंगेज करने के लिए अगर हम इनिशिएटिव्स लेते हैं, दैट ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इनोवेशन एंड स्टार्टअप. तो इन नटसेल आई वुड लाइक टू से कि किसी भी डिसेबिलिटी के जो भी चैलेंजेस हैं, उनके जो उनकी नीड्स हैं, इफ वी स्टडी देम माइन्यूटली और उन्हीं चैलेंजेस एंड नीड्स को देखते हुए उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, एंड देन वी थिंक ऑफ सम इनोवेटिव सॉल्यूशंस, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप करें, इनोवेटिव डिवाइसेस बनाएं और उनको कॉमर्शलाइज करने की तरफ में हम आगे बढ़े. क्योंकि मेनी टाइम्स क्या होता है, हम केवल कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बना लेते हैं, वी आर नॉट कॉमर्शलाइजिंग दैट. जब हम कॉमर्शलाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज ए काइंड ऑफ अ स्टेप टुवर्ड्स द स्टार्टअप्स. सो ये बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर द डूइंग वर्क इन दीज ऑल एरियाज. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड कि बात यह है कि एक तो नीड है, अपॉर्चुनिटीज है, दूसरा क्या है, बहुत चीजों के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है. जैसे कहीं भी हम जाते हैं वहां एग्जिट का साइन लगा होता है, एग्जिट के साइन पे एक लाइट लगी होती है, एक एरो बना होता है, और या घरों में जो बेल लगी होती है, आजकल सभी घरों में बेल लगी होती है, कॉल बेल लगी होगी. लेकिन अगर कोई डेफ है तो वो डेफ कपल तो अपने घर में होगा कि उस तरह से लगाएंगे कि एक बल्ब होगा जो बल्ब जलने लगेगा और तेज रोशनी में जलेगा, क्योंकि दिन के वक्त अगर किसी घर में बल्ब जल रहा है तो हो सकता है उन्हें ना पता चले. तो हमने इस तरह की इंक्लूसिव चीजें अपने सिस्टम में नहीं लाए हैं. और अगर हम कोई एज ए स्टार्टअप भी शुरू कर रहे हैं या कोई ऑफिस में भी बात कर रहे हैं या हम उनके इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम कैसे अडेप्टेशंस करें अपनी चीजों में, उनके साथ, मतलब हम उनके साथ कम्युनिकेट कर पाए, वो हमारे साथ कर पाए, और एक सेफ एनवायरनमेंट जो है वो हम उन्हें प्रोवाइड कर पाए. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. To add more to this our line of argument, I would say for entrepreneurship in the disability sector, the biggest challenge is the market creation, which has not happened. You need to identify the need areas, the problem areas, and create a market for that product. Work on that problem and create a market. It is important to see a person with a disability as a consumer with money and a need. They have money and they have a need, but you have to identify and look at that person as a consumer. Ma'am, is there also some need, some kind of training that can be acquired to in this area to work on a startup idea or something? यस, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर हम कोई भी इस सेक्टर के लोग हैं, डिसेबिलिटी सेक्टर में जो लोग हैं, अगर वो कुछ काम करना चाह रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि वो एक ट्रेनिंग देने की जरूरत है उनको. सबसे पहले हमें देखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरह की डिसेबिलिटी है, और या फिर अगर हम इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं कि हो सकता है सभी तरह की डिसेबिलिटी के लोग उसमें इन्वॉल्व हों, तो वहाँ हमें डिसेबिलिटी के लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो हमें देखना होगा कि हमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा. तो उनका पहले हमें देखना होगा फंक्शनल लेवल क्या है जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, और उनके फंक्शनल लेवल के हिसाब से हमें चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा और फिर उनकी ट्रेनिंग देना जरूरी है. जैसे कि उनको कम्युनिकेशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हम कैसे कर सकते हैं. इसके अलावा जब बात आती है कि मुझे लगता है हमें एक ब्रेक का सिग्नल दिया जा रहा है, एंड आफ्टर द ब्रेक विल रिज्यूम. We will join after the break. Are you interested in television journalism or radio journalism or online journalism? Or do you want to learn with the flexibility of open learning? Or if you are a working professional, wants to enhance your knowledge and skill with certification in the field of electronic media, then School of Journalism and New Media Study, IGNOU, offers
PG Diploma in Electronic Media for you. This program includes audio and audio-visual program production for radio, television and online platforms. Here are some important details about the program. We have total 8 courses of 32 credits, 6 theory courses, 1 practical and 1 project. Eligibility: bachelor's degree in any subject. Minimum duration 1 year, maximum 3 years. Medium is English, but students can write their examinations, assignments, practical and project in Hindi also. So if you are interested in television, radio or online media, please come and join IGNOU's PG Diploma in Electronic Media. We welcome you after this short break. So, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए I would like to make an important point over here in the discussion कि जब एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप आइडियाज़ रखते हैं डिसेबिलिटी स्पेस में, जो वो काम करना चाहते हैं, उनको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए. दे शुड मेक अ प्रोडक्ट दैट कैन हैव वाइडर एप्लीकेशंस. उनको सिर्फ एक ही निश एरिया पे वो फोकस ना करें, बट ये ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करें जो कि स्केलेबल हो. जब हम देखते हैं कि स्पेक्टिकल्स हैं, हेयरिंग एड्स हैं, वॉकिंग स्टिक्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, these were designed and developed for people with some kind of disability, but now they are being used by anybody who has a poor hearing, eyesight और weak knees हैं, वो सबको यूज़ कर रहे हैं. तो ऐसे स्केलेबिलिटी उस प्रोडक्ट में होनी चाहिए. ऐसे ही जब असिस्टिव टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए, सो कीप इन माइंड दैट इट कैन बी यूज्ड इवन बाय फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स ऑल्सो. सो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम मैम आपसे जानना चाहेंगे कि फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कुछ अवेलेबल हैं अगर स्टार्टअप्स डिसेबल पर्सन्स के लिए डेवलप करने हैं, बनानी है. देखिए, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए स्टार्टअप शुरू करना है तो कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है. हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उनका दिव्यांगजन विभाग है, और वहाँ कई तरह की स्कीम्स हैं जिसमें स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, उसके लिए सुविधा उपलब्ध है. इसके अलावा नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के एम्पावरमेंट के लिए ही डिफरेंट उनकी स्कीम्स हैं, जिसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं. इसके साथ साथ ICMR जो है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, डिसेबिलिटी सेक्टर में लोग अगर कोई इनोवेशन कर रहे हैं, कोई डिवाइसेस बना रहे हैं, उसके लिए भी वो लोग पैसा देते हैं, रिसर्च करने के लिए भी देते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के लिए भी देते हैं. तो वहाँ से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. इसके साथ साथ ICSSR जो है, वहाँ से भी फंडिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं. प्राइवेट एजेंसीज हैं बहुत सारे, टाटा ट्रस्ट है या और बहुत तरह के फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां संपर्क किया जा सकता है. राजीव गांधी फाउंडेशन भी जिसमें से एक है, तो वो भी इस तरह के फंड्स प्रोवाइड करते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी कुछ स्कीम्स हैं जो इसके लिए फ़ायदा उठाया जा सकता है. एंड इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी बहुत सारे काम करे जा सकते हैं इनोवेशन करने के लिए. और एक जो आजकल जो चीज़ चल रही है हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर में, कई
कई लोग खासतौर से यूज कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग की बात है, जो कि हमारे यहाँ बहुत सारे मॉल्स हैं, तो वहां जाके इन ऑर्गेनाइजेशन के लोग जाते हैं और वहां क्योंकि क्राउड इकट्ठी होती है, उस क्राउड के साथ जो है ना उनको मोबिलाइज करते हैं कि किस तरह से वो फंडिंग दें, एंड दे वर्क ऑन दैट एंड इट इज रियली वर्किंग। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो उसका फायदा लिया जा सकता है। Ma'am, please tell us some of the schemes, if there are any, of Government of India for supporting the persons with disabilities to initiate their own work. या जिसे एक तो हमारे जो बेसिक जो बहुत पुरानी स्कीम है, जो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की स्कीम है, जहाँ की पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को कोई वोकेशन सिखाने के लिए वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने हैं। उनकी नीड असेस करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए कुछ उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, एंड दे कैन वर्क ऑन देयर ओन। ये हम पुराने सिस्टम में कहते थे, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन की बात करते थे। आज हम बात करते हैं अपना स्टार्टअप शुरू करने की, जो बात कर रहे हैं वहां। तो उसमें स्कीम है NHFDC की, जैसे मैंने कहा, नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना। इस योजना के तहत इनको कुछ ग्रांट भी दी जाती है, फंड दिया जाता है, और ये पूरी ऑल ओवर इंडिया में इनकी स्कीम्स उपलब्ध हैं। इसके साथ विशेष माइक्रो फाइनेंस योजना जो है इनकी स्कीम, इस स्कीम का भी स्टार्टअप करने के लिए या अपना काम शुरू करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए नेशनल फंड भी एक क्रिएट किया गया है, और उस नेशनल फंड के अंदर भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है वो पैसा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का ही एक बॉडी है, नेशनल ट्रस्ट, और नेशनल ट्रस्ट की कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए काम कर सकते हैं, जो लोग इनका फायदा उठाया जा सकता है। जैसे दिशा एक स्कीम है, अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम। तो इसके तहत जो अर्ली इंटरवेंशन क्रेच खोलने के लिए या स्कूल रेडीनेस के लिए डिसेबल्ड बच्चों को सिखाने के लिए दिशा स्कीम के तहत फंडिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। विकास एक स्कीम है जो डे केयर सेंटर है, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के जो पेरेंट्स हैं ना, उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को कौन से डे केयर सेंटर में भेजें, तो एक इंक्लूसिव डे केयर सेंटर या उस तरह के सेंटर्स में ये विकास के तहत काम कर सकते हैं। समर्थ एक रेस्पाइट केयर स्कीम है, इसको भी स्टार्टअप की तरह शुरू किया जा सकता है। देन घरौंदा है, ये एडल्ट्स जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो इसमें फायदा ले सकते हैं। देन प्रेरणा है इनकी मार्केटिंग असिस्टेंस, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स इन लोगों ने बनाए हैं अपने उसमें, तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए प्रेरणा स्कीम के तहत फायदा ले सकते हैं। प्ले स्कूल के लिए एस्पिरेशन स्कीम है, और अरुणिम जो है ये एक स्कीम है जिसमें ये एसोसिएशन फॉर रिहेबिलिटेशन अंडर नेशनल ट्रस्ट इनिशिएटिव फॉर मार्केट। नेशनल ट्रस्ट के जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, यहाँ अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स तैयार करे हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, और ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इनका बेनिफिट कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इसके साथ सुजाता, मैं एक और भी बताना चाहूंगी कि डिसेबिलिटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स या इश्यूज पे अगर कोई रिसर्च करना चाहता है, इनोवेशन कुछ इस तरह का लाना चाहते हैं कि जैसे अभी शर्मा जी कह रहे थे कि हमें उनके कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसेस बनाने की जरूरत है, तो हो सकता है कि हम डेफ लोगों के लिए बात करने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम इंटरप्रिटेशन का कोई सॉफ्टवेयर या उस तरह की चीजों को डेवलप कर सकते हैं, तो उसके लिए भी इस स्कीम के तहत लिया जा सकता है। देन कई तरह की फैसिलिटीज इस स्कीम के तहत ली जा सकती है। एंड फिर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल भी है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। तो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिसका फायदा लिया जा सकता है, एंड फंडिंग इज ऑल्सो अवेलेबल। तो ये इस तरह की कुछ स्कीम्स हैं जिनका फायदा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ले सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, क्या इग्नू के स्टूडेंट्स कुछ ऐसे इनोवेशंस कर रहे हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में? डॉक्टर जो सुजाता, अभी जो डॉक्टर हेमलता ने बताया कि बहुत सारी स्कीम्स हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए हैं। आई होप अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन नहीं है और वो डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए कोई इनोवेशन या स्टार्टअप का काम करना चाह रहा है,
क्या उनको भी इन स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा, मैं पहले जानना चाहता हूँ। देखिए, ज्यादातर ये जो स्कीम्स की बात है, ये इसमें है कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज का इन्वॉल्व होना उसमें जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दीज स्कीम्स आर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। लेकिन जैसे हमने बात की कि पीपीपी मॉडल के तहत आप काम कर सकते हैं, बहुत सारे फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहां से हम बात कर सकते हैं, या क्राउड फंडिंग की बात है तो वहां हम उस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्कीम्स हैं ये स्पेसिफिकली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए है। डॉक्टर सुजाता, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, उनमें दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, डिसेबल्ड भी हैं और नॉर्मल भी हैं, एंड दे आर वर्किंग फॉर द डिसेबिलिटी इनोवेशंस। उनमें कई सारे हमारे इस तरीके के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे साथ कोई जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं या और कोई भी ऑडियंस है, इफ दे वांट टू आस्क समथिंग, दे कैन काइंडली आस्क एनी क्वेश्चन टू अस, और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए इनोवेशंस की जब हम बात करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा एक स्टूडेंट है मिस्टर कुणाल अम्बस्ट। कुणाल अम्बस्ट ने जो अपना जो इनोवेटिव प्रोडक्ट जो बना रहे हैं इस तरीके का, वो ये सोच करके, आई थिंक कुणाल अम्बस्ट ने अपना जो इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है वो कुछ ऐसे लोगों के लिए है जिनकी मोबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, एंड दे वुड लाइक टू कंट्रोल दी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस, वॉइस कंट्रोल्ड या सिग्नल कंट्रोल्ड, उस तरीके का। और आई विल रिक्वेस्ट, अगर कुणाल कैन कनेक्ट विद अस तो ही कैन एक्सप्लेन। इन द मीन टाइम आई थिंक वी कैन प्ले हिज वीडियो that he has given to us, and Kunal has been awarded with the Best Innovation Award by the National Center for Innovation and Distance Education for his innovation. और आपके सामने पेश है काया AI एंड काया इंटरफेस। काया AI जो कि एक ऑफलाइन वॉइस असिस्टेंट है जो कि पूरी तरह बिना इंटरनेट के काम करती है, जिसे आप कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं और जो आपको देती है पूरी तरीके से यूजर प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। Kaya, introduce yourself. Hello everyone, my name is Kaya. I am an artificially intelligent personal assistant. I am developed and designed by Colonel Ambassador. मेरी कई साल की मेहनत को आज आप अपने सामने देख पा रहे हैं। मैं हूं कुणाल अम्बस्टा। ठीक है, अब हम इसकी डिवाइस कंट्रोल करने की क्षमता को देखते हैं। Kaya, please turn on light. Electric bulb has been switched on. Anything else for you? Now this coffee maker machine. Kaya, please turn on coffee maker machine. Coffee maker machine has been switched on. Anything else for you? अब इसके साथ में एक नया एडिशन है। ये एडिशन है काया इंटरफेस। काया इंटरफेस एक तरह से BCI है जो कि आपके ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल करके चलता है। हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम इसमें नॉन इन्वेसिव मेथड यानी कि बिना चीर-फाड़ के सिर्फ आपकी स्किन के सरफेस के ऊपर से हम आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होने वाले जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है उसको कैप्चर कर रहे हैं, आगे ले जाके उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं और एम्पलीफाई करके उसे वापस सिस्टम में फीड करते हैं, जिससे हमारा सिस्टम को जो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी है और जो हमारा डेटा और सॉफ्टवेयर उस पर अवेलेबल है उसकी मदद से वो कैलकुलेट करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि दिमाग में क्या चल रहा है या किस तरीके के सिग्नल्स आ रहे हैं। उस सिग्नल के हिसाब से जो हमने दूसरे फीचर्स को उस पर मैप कर रखा है या दूसरे एक्शंस को मैप कर रखा है, वो एक्शन फिर उसके हिसाब से परफॉर्म होता है। यहाँ पर आप अपने सामने एक LED बल्ब देख रहे हैं, तो मैं अपने ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल करके, जो कि बेसिकली EOG है, अभी मैं यूज करने जा रहा हूँ, तो उसका इस्तेमाल करके मैं इसको कंट्रोल करके आपको दिखाऊंगा। So Kunal's solution is for physically challenged people, people with neurological disorders and old age people, so that they can better control their surroundings. We are really proud of our students that they are sensitive towards the disabled people. They are thinking to find solution to their problem, and I think this kind of zeal is required to make any kind of innovative solution, particularly for the disabled persons. हमें ये देखना है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। झारखंड से कॉल है। यस
I think it may be Kunal. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Yes, Good please. afternoon. Kunal Ambassador, sir, this side. Yes. Thank you so much, sir, ma'am, for this grand opportunity. और मैम जितना मतलब इन डिटेल्स आपने आज चीज़ों को एलिब्रेट किया मैम, मतलब हम एक्चुअली इस फील्ड में बहुत लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ मैम, और मतलब हमें इनोवेशन में और एंटरप्रेन्योरशिप में मैम जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं और जिस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है मैम, वो आज आपके मार्गदर्शन से मुझे चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो गई। और सबसे बड़ी जो चीज़ है मैम वो ये है कि हमें हमेशा से एनसीआईडी और इग्नू का सपोर्ट मिलता रहा है मैम, और हमेशा हम राइट ट्रैक पर चलते रहे। तो बेसिकली ये जो डिवाइस हमने डेवलप की थी वो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद मैंने इस डिवाइस को तैयार की थी, क्योंकि मैंने देखा कि जिस तरीके से मेरे फादर स्ट्रगल कर रहे हैं वैसे न जाने कितने लोग होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, पर मैं वो बनाना चाहता था जो बाजार में ऑलरेडी ना हो, कुछ अलग हो और जो मार्केट की एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, और इसलिए सर मैंने ये डिवाइस तैयार की थी। यस सर। Yes, Kunal, really you have done very wonderful work that you thought of the problem and then came out with the solution to that problem. और वो problem का जो solution आपने दिया है वो that I think will be useful for many people who are not able to move, who have some neurological problems, disorders. So it's a good thing. You keep on continuing working on it and try to convert it into a proper startup so that it gets that commercialized and used by many people. Yes, definitely. Our sir. best wishes to you. Best Thank you wishes so much, to sir. you, Kunal. Thank you. So similarly, we have one more student of ours, Mr. Shubhajit Bhattacharya. He is a student of Bachelor of Arts program of IGNOU, and he has modified a two-wheeler for people with disability who don't have both hands. In fact, important thing in this case is Subhajit, he himself is a disabled person, physically disabled, and then he thought of customizing the vehicle as per his need. So in order to understand how and what kind of customization he did, what kind of value addition he did in the scooter, I think let us see a video that he has shared with us. And then in the meantime, if he can connect with us, then he can also share. So, in fact, Subhajit is also a student who has been awarded by the National Center for Innovation in Distance Education. This is the part of accelerator, and this part is the accelerator, and this is the combi brake what I used, front and back from this side. And this is the choke, and this is the horn switch, this yellow one, indicator part, and light switch, and upper and dipper. नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल अम्बस्टा। So you could see how Subhajit has customized this scooter as per his need. He does not have both the hands, and with the help of his legs he is operating and also driving it very comfortably.
In fact, he could think the problem and then thought of the idea. Yes, I think let us take call from Bengaluru. Subhajit. Yes, please. I think it's got disconnected. So this is a kind of innovative mindset that we should have to find the solution for different problems and accordingly make changes in the things available or to design and develop entirely new thing. Both things are possible, and in both cases these innovations are required. Yes, please. Yeah. Sir, this is Shubhajit here from Bangalore. Yes. First of all, thank you, sir and madam, for this opportunity. It is really, this kind of awareness is actually required for the people with disabilities, all over the India. And it is really nice that I got this opportunity and able to elaborate that what I have done. See, एक बहुत ही चीज है कि अगर आपको खुद भूख लगे तो आपको पता चलेगा कि खाना कहाँ से लाना है. तो इट इज हैपन विद सिमिलर वे विद माय थिंग दैट जब मुझे ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत चालू हुआ कि दैट व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल लाइफ, सो देन आई स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट डिसेबल फ्रेंडली. तो मुझे दिक्कत हुआ कि दैट क्या होगा मेरे फ्यूचर के साथ. तो मैंने ये स्टार्ट किया मेरे खुद के लिए. देन मैंने अप्रोच किया बहुत सारे कंपनी को, बट जैसे होता है कि दैट नॉट वेरी गुड पॉजिटिव रिस्पॉन्स विच आई गॉट फ्रॉम देम. मोर देन 100 पीपल आई रीच हु आर पार्ट ऑफ द टेक्निकल नॉलेज, बट एज सिमिलर वे फिर मैंने खुद का डिजाइन तो शुरू किया. जो वीडियो में आपने देखा, दिस इज माई सेकेंड वर्जन ऑफ my two-wheeler, and now presently I'm riding the third version, which is I have completed more than 30,000 kilometers, which all over Karnataka, even the hill station I visit, which is 2017, which I designed, and अब तक के लिए मुझे काफी सक्सेस मिला है इससे, और which is very friendly, budget friendly. 3-4 हज़ार रुपए मैंने इसके लिए खर्च किया, क्योंकि डिसेबल पर्सन के लिए एक बजट बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको कितना खर्च कर रहे हैं उसके लिए. तो दैट आई हैव टेक ओवर. और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे पर्सनल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिकली फॉर द लोकोमोटर डिसेबिलिटी के जिनको अपर लिम्ब का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए काफी कम अवेयरनेस या फिर रिसर्च देखा गया है. जब मैंने रिसर्च किया है तो आई थिंक दैट जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एक है, जैसे मैम ने बताया कि जैसे सेरिब्रल पॉल्सी होते हैं उनके लिए खाने का जो स्पून होता है, that similar way I have also designed one portion where you no need any support from anyone. तो मेरा एक ही फंडा है कि जो मैं बना रहा हूँ मोबिलिटी एड्स, उसको पहनने के लिए या फिर उसका यूज के लिए मुझे किसी दूसरे का मदद की जरूरत ना पड़े. तो आपका जो बनाने का मकसद है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा. तो उस हिसाब से मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि जो मैं बना रहा हूँ दैट आई कैन यूज वेरी फ्रेंडली एंड यूटिलाइज दैट. सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इवन दो स्टिल टुडे आई एम विद द पार्ट ऑफ द सोशल सेक्टर, जिसमें जो अक्षता फाउंडेशन है, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे ऑटिज्म बच्चे के लिए, जैसे सुजाता मैम ने बोला है कि काफी सारे टीचिंग मटेरियल या फिर जैसे दूसरे चीजें जो बनाया जा रहा है ऑटिज्म के लिए, दैट वी आर डूइंग द डिफरेंट लेवल ऑफ रिसर्च इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं हम लोग. जी सर. सुभजीत, थैंक यू. यहाँ मैं दो चीज कहना चाहूंगा. एक तो जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं जी, उनके केस में जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्या है, आई थिंक दे कैन बेटर आइडेंटिफाई दोस. बिल्कुल बिल्कुल. एंड उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके इफ यू कैन कन्वे टू अदर पर्सन्स हु आर डूइंग रिसर्च और सम काइंड ऑफ इनोवेटिव वर्क, क्योंकि मैंने जो महसूस किया है कि दोज हु आर डेवलपिंग सम डिवाइसेस फॉर द डिसेबल्ड पर्सन्स, दे आर नॉट वेल अवेयर ऑफ द एक्चुअल प्रॉब्लम्स.
क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम्स और उनका जो डिवाइस जो डेवलप कर रहे हैं उनके बीच का जो गैप है, अगर वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाए, पता चल जाए व्हाट इज राइट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, तो आई थिंक दोज हु आर रिसर्चर्स दे कैन डेवलप बेटर सॉल्यूशंस, बेटर प्रोडक्ट्स. बिल्कुल सर, क्योंकि अभी आपने जो किया है, यस, एक्चुअली क्या होता है सर कि अगर आपको किसी दूसरे का प्रॉब्लम समझना है, then you have to wear the person's shoe. But before that, you have to remove your shoe. Then only you can wear the person's shoe. So I'm talking about the feelings and the need. तो वो जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो गैप हो जाता है बीच में. आई थिंक शुभजीत, यहाँ एक आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है आप सब लोगों की मदद से. कैन वी एट NCID डू समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ exercise to identify the problems of the disabled persons in different areas and then suggest some innovative solutions and can convey it to the research institutions like IITs or other organizations. Right. These are the areas जहां आपको innovations की जरूरत है. Right. I think अभी we can discuss it in detail and can मिटना बहुत जरूरी है. Yes. ठीक है. Thank you very much for connecting, and then we are really proud of you, Subhajit and Kunal, both of you. Yes. Keep on doing this wonderful work for the people with disability and other normal persons also, and keep in touch with us. Yes. Keep updating so what kind of new innovations you are doing for others. Given us the opportunity, and specifically the Bangalore, the IGNOU regional team, Dr. Kasturi ma'am and the team who has always supported and mentoring us, and specifically me, because मुझे कभी निराश होके आना नहीं पड़ा वहाँ से. I always get the motivations from them, and I get the courage that yes, it is possible. And thanks to you and the whole team. Thank you so much, sir. Thank you. Well, yes. This we saw how IGNOU students are working in this sector, and when we look at the national scenario, there are a number of entrepreneurs who have built promising assistive solutions for people who are disabled. Kibo is there by Trestle Labs. This is a reading and learning platform where one can access printed, handwritten or digital content through audio in real time. Then there is a Bangalore based cab service called Kickstart, which is only for disabled people. Then Oswald Lab is building a smartphone software for people who are unable to use a smartphone. These are just a few examples which I am quoting. I would now request the experts who are there with us, Dr. Hemlata and Dr. Sharma, if they would like to say something, add more to this before concluding this session. Actually, my message would be like, if we want to start any innovative thing for persons with disabilities, first thing is to keep in mind their needs, as well as how we can take that device or app to other persons also. Because when a device or a thing has wider reach, then wider acceptability is also there. So how we can take that into the system. So that is important. Yes, I agree with her, because we have to keep in mind their needs, their challenges, and then think of innovative solutions. And for that purpose, NCID, IGNOU is there always with all our students and alumni. Come forward with innovative ideas. We will support you. We will guide you for that purpose. Yes, same NCDS is also there if students with disabilities need any support, even if you are in Bangalore or Jharkhand, in that area also, if you need any kind of support in disability sector, we are always there. Thank you, Dr. Hemlata. Thank you, Dr. Sharma. And thanks to all the students. Thanks to innovator students of IGNOU who had joined in from different parts of India. And thanks to all who are now joined in for this program. We are also, thanks are also due to our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Nageshwar Rao, and our Honorable respected Pro Vice Chancellor, Sir, Professor Kiran Hazarika. Thanks once to all. Thanks to all. Thanks to MPC also for providing this all kind of support.